and welcome to a very special episode of Frankly Speaking. And joining me tonight is a legal mind which probably has no parallel in India and today internationally recognized, carried the torch for India at the International Court of Justice with the Kulbhushan Yadav case. Thank you very much for joining me, Mr. Harish Salve. Mr. Harish Salve, at a time when we are talking, we're in a country where things seem to be happening as if there is no law. It seems like there is no law and justice machinery. Arbitrary things, things that really instill a sense of fear in the common man, makes them wonder whether law just exists for the common man? Navika, I'm watching a 9th century portrayal of United Kingdom. It's on a Netflix. It's a serial about, partly historical serial about England. And if you see the politics of that day and if you see the politics of today, nothing has changed. It has become more sophisticated. I mean, there is a priest who shouts at the king saying, you must give him a hearing, justice must seem to be done. Come on, we are in the 9th century. We are now in the 21st century. And sometimes we see very odd things going on. What is happening today is like those days, the political sweepstakes have become so high. And we have to acknowledge, and I've said this publicly, what happened in 2014 was the beginning of a radical change in India, a transition of power from the Lutyens' Doon school, missionary school, English-speaking, educated lot to homegrown, empowered lot. And this had to happen. India has had a very successful experiment in empowerment. See the way reservation bills are passed without opposition. So that empowerment over a period of time has led to a set of homegrown leaders who have captured popular imagination. And you can criticize them till the cows come home. But the fact of the matter is the people of India have faith in them, trust them, respect them. And that is what a democracy is all about. Now, these changes in a people as feudal as India, honestly, when people here ask me about feudalism, I say, well, one country where feudalism is not diluted, it is India. We are by temperament feudal. See the way you treat your own domestic staff. See the way you treat those who are lesser, and see the kind of subjugation or the kind of the social structure between the haves and have-nots, between the rich and powerful and those. Look at our ministers. I mean, here you meet a minister, you exchange numbers, you WhatsApp, you meet up for a meal, you chat like you're two fun people meeting. And look at India, the degree of deference which you have to show to somebody in power. The point is this transition in power which is taking place. This is creating a lot of shockwaves in India. You can see the way the Congress is splintering. You can see the way other political parties are suddenly trying to find their feet. And you can you see the disruption in your own profession. The media. So all these changes will take time. We got democracy in 1947. From 1950, we had a constitution. The change happened in 2014. It's a very long time. The change will take 10 years for things to settle down. Now, in the meanwhile, people are trying to ride any political wave which they can. I mean, look at the kind of leaders the farmer protest has. Ultra-left. The other factor is the ultra-left factor in India. They have lost credibility the world over. They've lost the faith of the people. Nobody votes for them.
So but they are all intelligent, they're articulate. They love saying the soft things which everybody likes to hear, the populist things. So they dominate the media space, they dominate conversation. And every now and then they want to throw modern people who've done well through your Panama Papers and Pandora Papers and so on and so forth. So this is, and it's not in India, this is world over, you're seeing this phenomenon. On the borders of Delhi is the Singhu border, and there is a farmer protest that's been going on there for almost a year, maybe more. And at that place, there has been a brutal hate crime, a killing that has been videographed, limbs being chopped off, people videographing all of that, then hanging the man while he's still got some life in him. And yet, even the fact that this body is being found at the protest site, the farmers' protests and the farmers' groups and organizations say they have nothing to do with it. They condemn the incident. Cops not being allowed to go in. The Supreme Court has said what it has said, that protesters have a right, but they can't upset other people's lives. But the government won't move and won't remove these people. So where do we go from here? So I think we need to do, I think in my new home in UK, we need to do the same thing. I think in India, my home, we need to do the same thing. I think it's about time this sense of liberalism is revisited. The right to protest is good. Are we willing to forgive what Donald Trump and his supporters did when Biden was to be sworn in on Capitol Hill? No. Where has this right to protest left America? The country with the most abundant supply of vaccines is just about 50% vaccinated. Where is this right to protest going to end up? Look at this country. You had an incident somewhere in the world. You had people coming down in Hampstead using profanities against Jews on the main road. And when the Home Secretary here cracks down, the liberals say she doesn't have empathy. Look at what's going on in India. If the government as much as moves a finger to get rid of these people, you will see your entire liberal media up in arms saying first you hammer them with bad laws and then you beat them up. Is anybody willing to debate the law? Is anybody willing to say, which section of the law are you against? No. What is the argument? It should have been sent to a select committee. Means buy time. So this is what is going on. You have misled people. I saw Prashant Bhushan's tweet on the Citizen Amendment Act and the rules made. He referred to non-existent rules and said, under that rule, this will happen, right? Now people believe him. Would somebody ask him, which rule are you talking about? A rule which is in somebody's head? It's an idea in somebody's head, most probably your head. So, these kind of things are going on in India. So you created this whole huge big things, you misled farmers, and then today, because of this huge political space in the opposition, see, there is a huge political space and it's an empty ground. People are trying to become leaders to occupy that empty space. And whenever there is an empty space, you have trouble. But it's you a have joke. To fill up that empty the space. Farmer protests are a joke simply because the Supreme Court in itself has kept and asked the government to keep it in abeyance. The government has kept it in abeyance. Forget the sections of the law has not been implemented. Yet, exactly. Yet the protests are on and killings are happening, rapes are happening, molestations are happening in these protest sites. If you step back for a moment, there is something which Mr. Advani had said a very long time back, which I remember. And at that time, I didn't understand its full implication. Later on, I did. He said, the Congress is collapsing faster than the BJP is growing. And this gap will be filled in
by a lot of very extreme self-serving parties. I don't want to name them. You had some extreme parties which stepped into the space in UP, in Bihar, etc. Extreme leaders of extremely questionable credentials, promising the moon. The good thing about that is if one promises X, the other promises 2X, the third promises 3X, and then they all fall away in a period of time. There was space created. He was right. The BJP was not growing that fast. The Congress was collapsing very fast. There was empty space. Nature abhors a vacuum. Today we have a reverse. Today, Modi's government occupies center stage. But who's on the other half of the stage? Nobody. So there are all these people who are trying to become prominent leaders. Now, do you think they have any qualms of conscience about what's going on? Somebody's hands being chopped, legs being chopped? No. Because even now, a lot of your colleagues in the media are crying tears over the poor farmers. Look, read the New York Times. Look at the Guardian. The poor Indian farmers are in protest and the government is turning a deaf ear. Do they even understand what the issue is about? No. So, this is if you get to this is the real area. People trying to attain leadership. What should the government do? Well, I've always had extreme views. I think the government should say, hell with you chaps, and clean it up. And use this as a good occasion to say, if you have lost control, which you are admitting, then you don't belong, and get rid of them. They'll be screaming and shouting if there is in any case over something or the other. All the leaders will tweet against them, which they do in any case. And I think we'll be in some other crisis in 3 months. But Mr. Salve, do you think the government has the nerve? If they did, they would have done it maybe a year ago. The fact is there's too much water under the bridge and everybody is thinking about the next election in a state or the next elections to the Lok Sabha, and that's where all this lies. And in the middle of all of this are people, ordinary people like us who have to go to work, whose kids have to probably cross borders to go to colleges. They bear the brunt and everybody looks the other way. Isn't that true for all, in every democracy? You care for the lot that votes and whose votes matter. Do your and my votes matter? And in what proportion? So that is a problem in a democracy where there are so many mismatches. Any popularly elected government will choose timing. And one of the elements in that timing is its popular perception. Now, that's a reality of politics. Do I like it? Do you like it? I'm not a politician. I don't like it. But then I don't have to go and stand there and fight an election. Those who have to face the ballot box every now and then, do they have to compromise on these issues? Yes, they do. And that's the reality of politics the world over. Absolutely. So, Mr. Harish Salve, the topic that I want to now come to is something that interests audiences across India. And a lot of them are Hindi speaking, and now we also have our Hindi channel, which is called Times Now Navbharat. So, I'm going to ask you in a little bit of Hindi and a little bit of English. So, Harish Salve साहब, पूछना ये चाहती हूँ कि एक केस हमारी आंखों के सामने और हो रहा है जो मुंबई में हो रहा है, आर्यन खान केस। आर्यन खान केस आज शायद 13 दिन हो गए हैं। आर्यन खान जेल में है, 4 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन एनसीबी की दलील है कि उनके ऊपर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में हो सकते हैं क्योंकि ऐसा उनकी व्हाट्सएप चैट से सस्पिशन है। इसलिए आर्यन खान अब 20 तारीख तक जेल में रहेंगे। 2 तारीख से 20 तारीख 18 दिन। इज आर्यन खान पेइंग द प्राइस? क्या वो शाहरुख खान यानी कि एक सेलिब्रिटी होने की प्राइस पे कर रहे हैं आर्यन खान? जहां तक आर्यन खान का सवाल है, नाविका, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा और आपको पता है क्यों। पर जो बात आपने रखी है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज अनफॉर्चुनेटली एक
हमारे सिस्टम में एक पॉपुलिस्ट कल्चर आ गया है, और उस पॉपुलिस्ट कल्चर का सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर दिखता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और कई बार हाई कोर्ट में। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको जो पास्ट के हैं, क्योंकि ये पेंडिंग केस है, मेरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, तो केस चल रहा है कोर्ट में। राणा कपूर 2 साल से जेल में बैठे हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑनगोइंग केस है। उनकी बेटी और बीवी के खिलाफ आरोप हैं कि भाई पैसे जो खिलाफ एलिगेशन यह है कि राणा कपूर ने धवन के साथ मिलके उनको धवन को पैसे दिए और उसके आवाज में राणा कपूर को सॉफ्ट लोन्स मिले जो उसने अपनी बेटी और बीवी के नाम किए। ये 3 लेडीज के खिलाफ पुरानी चार्जशीट पड़ी है, उस पे वो केस आया, वो कोर्ट में गई, उनको उठा के जेल में डाल दिया। वो बच्ची जिसका 3 महीने का बच्चा है, जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, उस बच्ची को जेल में डाल दिया और कहा कि नई चार्जशीट आई है। नई चार्जशीट का अगर आप पढ़ो तो आरोप क्या था कि राणा कपूर ने फोर्जरी भी की है, वो बच्ची की सिग्नेचर फोर्ज की है, तो उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसमें वो बच्ची को अंदर कर दिया। फिर सेशंस कोर्ट में बेल नहीं मिली, फिर हाई कोर्ट में बेल नहीं मिली, फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो ये आप देख रही हैं क्या हो रहा है। हर मामले में आज एक परसेप्शन हो जाता है। एक तो आप लोग फ्रंट पेज न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हो तो सब जज इसको ये लगता है कि भाई ये नहीं दिखना चाहिए कि मैं किसी के दबाव में आ गया, किसी से दब गया। और इससे सबसे बड़ा जो इसमें मैं गलती मानता हूं, सबसे बड़ी ये गलत मैसेज कहां से चला है, ये सुप्रीम कोर्ट से गलत मैसेज गया है। और ये कब मैसेज गया है? जब 2G के लोगों को बेल नहीं मिली। आप देख लो, एक आदमी एक्विट हुआ है उसमें, और जबरदस्ती 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को जेल में रखा गया। तो तब से ये मैसेज गया है कि इकोनॉमिक क्राइम हो, ठूस लो अंदर, बड़ा आदमी हो, ठूस लो अंदर, मत छोड़ो। क्योंकि छोड़ोगे तो गरीब आदमी को लगेगा कि बड़े आदमी के लिए कानून नहीं है। इसका मतलब यह है कुछ मिले ना मिले, एक्टर का बेटा है अंदर, एक्टर है अंदर, बड़ा जर्नलिस्ट है अंदर, पैसे वाला आदमी है अंदर। तो ये जो एक हमारे देश में आ गया है ना, ये एक सेंस ऑफ क्लीनिंग अप द सिस्टम। हर जज सोचता है कि मैं अन्ना हजारे हूं, मेरा काम यह है कि जहां मुझे गंद दिखी उसको साफ करना चाहिए। लेकिन साल्वे साहब, मैं इस पर एक दलील ये भी दूंगी कि अति बहुत सालों इस देश में ये भी हुई कि बड़े बड़े लोग लूटते भी रहे और सिस्टम को खेलते भी रहे। शायद ये स्टेज आनी अनिवार्य हो गई थी, जरूरी हो गई थी, क्योंकि ये वही देश है जहां से माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, एजेंसीज ने कभी कोई केस प्रूव ही नहीं किया, कन्विक्शन रेट बहुत लो है, और आम आदमी पकड़ा जाता है, जेल में रहता है, कोई आंसू नहीं बहाता है। लेकिन बड़ा आदमी पकड़ा जाता है तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं सारे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप नाविका। एक्सेस टू जस्टिस, अगर आप मुझे कहो इंडिया में गलती क्या है, तो ये नहीं कि बड़े आदमी को बेल मिलती है, इंडिया में गलती ये है कि छोटे आदमी को बेल नहीं मिलती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आप जो बजट है एक्सेस फॉर जस्टिस का, उसको बढ़ाइए। यूके का आप एक्सेस टू जस्टिस का बजट देखिए, मिलियंस ऑफ पाउंड्स वकीलों को दिए जाते हैं फ्री में अपीयर होने के लिए, जो कन्विक्ट होते हैं। जो आपने बात कही वो 100% सही है। ये परसेप्शन क्यों है? आपने ही कहा ना कि गरीब आदमी को तो बेल नहीं मिलती। उस पे देखिए ना, उस पे ध्यान दीजिए। एक आदमी जिसने चोरी की, उसको 3 साल जेल में क्यों, किसने छोड़ दिया? क्यों उसको लीगल सर्विसेज नहीं मिली? उसको हम कैसे ठीक करेंगे? आप आज कपूर लेडीज को अंदर डाल के, वो गरीब आदमी अभी भी जेल में सड़ रहा है। आर्यन खान अगर जेल में बैठा है तो वो गरीब आदमी को, उससे कोई, अगर आप उसके बगल में जो बेचारा बैठा हुआ है छोटी चोरी के लिए 6 महीने से, साल भर से, जिसको बेल नहीं मिल रही, उसको, उससे कोई शांति नहीं मिलेगी कि आर्यन खान भी यहां बैठा है।
उसको शांति तब मिलेगी जब कहो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील सरकार ने किया है, जो तुम्हारा केस पढ़ के आके कस के बहस करेगा। तो एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाना सॉल्यूशन है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ऑफ विद देयर हेड्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है हमारे देश में, ऑफ विद देयर हेड्स, उसको एनार्की कहते हैं। लॉ, रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करें, रूल ऑफ लॉ का ये है, अगर आपका जस्टिस सिस्टम गड़बड़ है तो जस्टिस सिस्टम को ठीक करिए। ये नहीं कि जस्टिस सिस्टम खराब है तो ये दिखाइए कि सभी के लिए खराब हो गया। लेकिन हरीश साल्वे साहब, मुद्दा ये भी है कि आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर पाएगा आप जैसे वकीलों को। क्यों अफोर्ड करना चाहिए? सरकार भरेगा हमारा खर्चा। इस देश में कैसे होता है, टॉप चूसीज अपीयर होते हैं इस देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फूड सरकार भरती है, इंडेक्स सरकार हमसे ही टैक्स लेगी। कितना बजट चाहिए आपको नविका? आपको पता है लीगल एड के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ उतना नहीं है अपने देश में। हम कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। 20 मिलियन 25 मिलियन $50 मिलियन नहीं है हमारे पास, और नहीं है तो सिगरेट और बीड़ी पे 0.01% सेस लगा दो, जस्टिस सेस। 1000 करोड़ साल का आ जाएगा आपके पास। हमारे पास जजेस भी नहीं है, वैकेंसीज इतनी है। क्यों है? पेंडेंसी ऑफ केसेस। नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों जजेस हैं। आप जरा इसके अंदर जाइए ना, आप यू डू सच वंडरफुल वर्क, मैं सच में कह रहा हूं, आप जाके देखिए, एडवर्टीजमेंट निकलती है। आज का जमाना ये आ गया, एडवर्टीजमेंट निकलती है, तो उस एडवर्टीजमेंट में आधे से ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि सैलरीज इतनी कम हो गई हैं। बहुत कम जजेस हैं जो ये सोचते हैं चलो देश के लिए हमको कुछ करना है। सब महात्मा गांधी की माइंडसेट वाले नहीं होते। आप एक अच्छी सैलरी दीजिए ना। ये नहीं कहता कि एक बड़े वकील के कमाई के बराबर दे सको, किसी देश में नहीं है। तो कम से कम एक जज अच्छे घर में रह सके, अच्छी तरीके से रह सके, मिडिल क्लास लाइफ रह सके, उतना तो दीजिए आप उसको। और अगर वो देना, अगर आप नहीं देंगे, अच्छा उसका बजट कितना है? मुझे याद है बहुत साल पहले, और ये कैसे हमारी सरकार के जो लोग हैं, नॉट एट दी मिनिस्ट्रियल लेवल, नीचे के लेवल, एक बार, बहुत साल हो गए तो मैं रिस्क ऑफ वायलेटिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपको बताऊंगा। एक मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में मुझे बुलाया गया, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जजेस बढ़ाइए, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों ने उठा के बोल दिया 12,000 करोड़ का बजट है। कैसा कहा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट का आज कॉस्ट क्या है बिल्डिंग का, तो आज दिल्ली हाईकोर्ट के बिल्डिंग का कॉस्ट 200 करोड़ है। उसको डिवाइड करो 20 जजेस से, तो पर जज बिल्डिंग कॉस्ट कितना आता है? 50 करोड़। उन्होंने कहा हम 10 जज और बढ़ाएंगे तो 500 करोड़ और लगेंगे। अरे भैया, 10 जज और बढ़ाओगे तो 10 कमरे और लगेंगे ना आपको। नहीं है क्या आपके पास? एक फ्लोर अगर डालना पड़ा आपको दिल्ली हाईकोर्ट में, तो उसका 500 करोड़ का खर्चा है क्या? तो वो क्या करते हैं, क्या उन्होंने कैलकुलेशन किया, टोटल जुडिशरी बाय नंबर ऑफ जजेस कर दिया और उसको 30% से बढ़ा दिया, जैसे कि हर जज के लिए नई बिल्डिंग बनेगी। तो अब वैसा अगर आप बजट बनाओगे तो 10,000 करोड़ का बजट बन गया, वरना अगर आप सैलरीज का बनाओगे तो 100 करोड़ में निप जाएगी। तो एक ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भाई रिसोर्सेज जहां कम है। और सच बात बताऊं, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इलेक्टोरल प्रायोरिटी नहीं बन जाता, जब तक एक सरकार में जो इलेक्शन लड़ता है उनको ये नहीं लगेगा कि अगर हमने जजेस की और जस्टिस डिलीवरी की इंप्रूवमेंट नहीं की तो हम इलेक्शन हारेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला। मोदी जी ने आज सबको क्या कॉन्सेंट्रेट किया, क्यों लोग जीत गए? अभी गरीब आदमी के घर के ऊपर छत आ गई, गरीब आदमी को गैस मिल गई, गरीब आदमी को बिजली मिल गई, गरीब आदमी को पानी मिल गया, उनके सड़क, उनके गांव तक रास्ता पहुंच गया। अब एक और चीज बनाओ ना, गरीब आदमी को जस्टिस भी मिलना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि 2-4-5 बड़े हमारे हाथ लग गए उनको ठूस दो और रोज ताली बजाओ दो, देखो हमने एक बड़े आदमी को अंदर कर। लेकिन कल कोर्ट में दलील ये थी कि महात्मा गांधी के देश में, और ये एनसीबी के लॉयर जो ASG सिंह थे, उन्होंने दलील दी कि महात्मा गांधी के देश में क्या ड्रग्स होने चाहिए? तो क्या हमें ड्रग्स को नहीं ख़त्म कर देना चाहिए? आप इस दलील से सहमत हैं? क्योंकि अभी तक कुछ पर्सन पे मिला नहीं है, लेकिन
कहा जाता है कि आगे कमर्शियल क्वांटिटी के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात है व्हाट्सएप चैट में, और एक क्रूज पे थे जहां बहुत सारे लोग थे, तो कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग वहाँ कंज्यूम होते, और सेलिब्रिटी लोग आते हैं तो लोग भी ज़्यादा आते हैं ऐसी पार्टियों में ज़्यादा। ये हम सब कुछ एक इमेजिनरी बेसिस पर समझ रहे हैं कि वाकई ही सेलिब्रिटीज को पकड़ा जाएगा ड्रग अब्यूज में तो ही एक संदेश जाएगा नीचे। ये पूरी एक सोसाइटी लेवल पर एक डिबेट, एक जंग छिड़ गई। देखिए, ये पहली बात, सबसे अहम बात है कि महात्मा गांधी के देश में कई चीजें ऐसी होती है जो गांधी जी के खिलाफ थे। सबसे पहले तो झूठ बोलना, दूसरा एक इस किस्म की दलील पेश करना, यह महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। तीसरा, ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है, अव्वल तो इंडिया में ड्रग्स ट्राइबल एरिया में हमेशा रहे। मध्य प्रदेश में चरस और गांजा के ठेके ऑक्शन होते हैं, वहां से पैसे आते हैं। तो ये तो है, जिस स्टेट में वो बहस कर रहे हैं वहां सबसे लिबरल अल्कोहल की पॉलिसी है, और सही है। आप अगर अल्कोहल बंद करोगे तो इट ओनली गोज फ्रॉम लेजिटिमेट ट्रेड टू इलीगल ट्रेड। दुनिया में आज एक बहुत बड़ी मूव है, और मैं सही है कि गलत है नहीं कह सकता क्योंकि मेरी को इतनी इसमें स्टडी और समझ नहीं है। बहुत बड़ा मूव है कि जहां तक वीड का सवाल है, जिसको कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उसका हिंदी में क्या नाम है, उसको लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि वो रिक्रिएशनल ड्रग है। जिस दिन आप लीगलाइज कर दोगे ये सब इलीगल बिजनेस बंद हो जाएगा। सही है गलत है मुझे नहीं मालूम। इन चीजों को हमको एक सोशल मिलियू को माइंड में रखते हुए करना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी ये शौक नहीं फरमाया, पर अगर एक यंगस्टर लेता है तो मैं उसको कंडेम भी नहीं करता, क्योंकि आज सोसाइटी हमने ऐसी बना दी। ये किसी दिन और आप और मैं बहस करेंगे कि ये क्या हो गया है कि आज इंडियन बच्चे, बड़े यानी अमीर घर के बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ पाते। ये नहीं कि इंडिया में पढ़ने नहीं चाहते, पर इंडिया में नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन छोटे शहरों के बच्चे जो मेहनत करके आते हैं उनको मिल जाती है। पर दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं। ये बच्चा कैलिफोर्निया में पढ़ा है 3 साल 4 साल। तो ये महात्मा गांधी के देश में ये भी नहीं था कि बच्चे बाहर जाके पढ़े। वो तो ये था कि पेड़ के नीचे एक बड़े अच्छे गुरुकुल में जाके पढ़े। तो ये सब बातों में यानी ये सब मिक्स नहीं कर सकते। जहां तक रहा सवाल इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि जब तक स्ट्रिक्टली नेसेसरी हो किसी को जेल में रखा जाए। और मैंने हमेशा ये कहा, वो भले इस केस में हो किसी और केस में हो, क्योंकि जेल कहीं भी और खास करके इंडिया में एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर आपने इसको बाद में एक्विट कर दिया तो इस बच्चे को जो ट्रॉमा हुई है, और ये इसके लिए नहीं कह रहा मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, वो जो राणा कपूर की फैमिली को जो ट्रॉमा हुई है, या किसी गरीब आदमी को जिसको गलत कारण से पकड़ के अंदर ठूस दिया और 6 महीना अंदर रखा, उसका परिवार बर्बाद हो गया है और आपको टाइम नहीं मिला उसका बेल सुनने के लिए, आप उसकी वो जिंदगी वापस कर सकते हो क्या? और नहीं कर सकते। अगर उसकी जिंदगी वापस, तो बेल नॉट जेल, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते थे, वो क्यों नहीं करते? तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं लिबरल हूं इन मामलों में। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बेल नॉट जेल रूल होना चाहिए।
और इस किस्म के जो एक ये इमोशनल पिच है कि जेल कि हमको ड्रग्स इरेडिकेट नहीं करने चाहिए, कि आप सड़क पे चले जाओ बम्बई में, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, सड़क पे चले जाओ बम्बई में, कितने यंगस्टर थे अच्छे अच्छे घर के जो रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं लेते। तो ये सब आप मेरे को पूछो आज कि क्या मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो गई, अब तो खैर बड़ी हो गई, एक शादीशुदा है, एक काम कर रही है, किताब लिख रही है, उन्होंने अपने कॉलेज डेज में कभी वीड नहीं स्मोक किया। मैं नहीं कह सकता दिल पे हाथ रख के किया भी होगा नहीं किया होगा, मुझे क्या मालूम, बाहर पड़ी हैं इंडिया के। तो ये एक जो होलियर देन दाउ हम्बग है ना, ये छोड़ के एक रियलिटी पे आना चाहिए। आज जो इंडिया है, आज इंडिया एक तरफ से तो आप कहते हो ग्लोबल सुपर पावर है, दूसरी तरफ से आप उसको दिखाते हो कि आप 18वीं सेंचुरी के वैल्यूज में रहो। ये दोनों मिक्स नहीं होते। हमारे बच्चों में इतना वेस्टर्न कल्चर आया, हमारे बच्चे धोती पहन के घूमते हैं, जीन्स पहन के घूमते हैं। गांधी जी ने तो कभी जीन्स नहीं पहनी। तो ये एक कल्चरल चेंज जो आया है, ये इनएविटेबल है। हाँ, इसमें ड्रग्स को आप कड़क रवैया रखिए। अगर कमर्शियल क्वांटिटीज मिली, अगर आपको शक है कि कोई सप्लायर है, उसको आप जेल में डालिए एंड मेक श्योर यू थ्रो अवे द की। तो उस पर कोई टू व्यूज नहीं है। ड्रग्स को एक सख्ती से करना है, पर एक ड्रग यूजर, एक यंग ड्रग यूजर जो सोशल प्रेशर में आके बच्चे करते हैं, मुझे नहीं मालूम आर्यन करता है नहीं करता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं उसमें, और एक जो एक अपनी लाइवलीहुड के लिए, पैसे कमाने के लिए बच्चों को बिगाड़ता है, आप उनको क्या इक्वेट करोगे क्या? सालवे साहब, डेफिनेटली सोशल लेवल पर एक ये डिबेट तो है, पर बहुत लोगों का इस देश में मानना ये भी है कि फॉर वेरी लॉन्ग द रिच एंड फेमस हैव गॉटन अवे विद ब्लू मर्डर, एज दे से, while the poor have paid the price for even the smallest of mistakes. वो जो कहर बरसता है वो छोटे आदमी पे बरसता है हमेशा। कहीं इसका अब रिवर्स हो रहा है। अगर एनसीबी को ही देखा जाए, द चार्ज अगेंस्ट द एनसीबी इज फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स दैट इट पिक्स अप हाई प्रोफाइल केसेस। इज इट अ पब्लिसिटी स्टंट? कैन दे प्रूव इट विद देयर कन्विक्शन रेट्स? नहीं, मैं ये देखिए, एनसीबी का सवाल जहां तक है, मैं नहीं मानता कि ये दिक्कत क्या है, ये फ्रंट पेज न्यूज की दिक्कत है। आप हर बात मीडिया पर जरूर ले आते हैं। बिल्कुल, हर चीज के गुनहगार हम ही हैं। गुनहगार नहीं है। आप लोग हमको मिरर दिखाते हो, पर हम लोगों को अपनी खुद की सूरत इतनी पसंद है कि हम रोज मिरर को देखना चाहते हैं। तो सबको ये है कि भाई मेरा नाम छप गया उसमें, बहुत बढ़िया हो, आपने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया। अगर वो किसी को पकड़ के छोड़ देंगे तो आप कहेंगे अच्छा उसको छोड़ दिया। अगर पकड़ के ठूस दिया, आप कहोगे देखो वाह क्या अफसर है, किसी के दबाव में नहीं आया। तो ये इसका भी एक प्रेशर होता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता जजेस ये प्रेशर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बताऊं, एक आरोप जो है कि एनसीबी सिर्फ बड़े लोगों को पकड़ता है, ये झूठ है, ये गलत इंप्रेशन है। जो बड़े लोगों को पकड़ता है उनका नाम अखबार में छपता है, जो इनसिग्निफिकेंट लोगों को पकड़ता है उनका नाम अखबार में नहीं छपता है, जो फ्रंट पेज पे नहीं है। तो ये बात नहीं है। तो ये आरोप एनसीबी के खिलाफ ये नाजायज है। आज हमारा सिस्टम यह है कि एजेंसीज को सख्त होना चाहिए, पर उनका कंट्रोल जुडिशरी के हाथ में है। और मैं तो अपनी जुडिशरी तो मेरा परिवार है, 40 साल उसमें काम किया है और अगले 20 साल और काम करूंगा मैं, 15 साल कम से कम उनके साथ। तो जजेस और लॉयर्स भी एक परिवार है। तो मैं अपनी परिवार की तरफ उंगली दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने कहीं ये ढील छोड़ दी है। हमारे भी अभी जजेस हैं जो ये नहीं देखते किसको बेल दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे। जस्टिस वेंकटरमैया, उनसे बड़ा संत उस जमाने का, ही वाज वन ऑफ द सेंटली जजेस, और कितने वाइज थे वो। उन्होंने थापर को शाम के 5:30 बजे बेल दी।
तो सब लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन्होंने कहा ठीक है, वो उनका काम है, ये मेरा काम है। अगले दिन आर.के. जैन उधर गए, बड़े बहुत बढ़िया वकील थे, हमारे मित्र थे, तो उन्होंने बेल किया, वेंकटरमैया साहब के कोर्ट में आया, उन्होंने बेल दी, जाते जाते कहा, मिस्टर जैन इट्स नॉट 5 o'clock। तो इस किस्म का हमेशा चला है ये, पर इसको इतना अपने ऊपर ले लेना और इससे फिर ये एक स्ट्रेस में रहना कि भाई मैं अगर ये ऐसा करूंगा तो ये क्या होगा, और ये एक जुडिशरी को एक मिशन पे चले जाना कि हमको सब गलत आदमियों को अंदर करना है, ये जुडिशरी का काम नहीं। तुम्हारा काम है, तो कुर्सी पे तुम बैठे हो, जो तुम्हारे सामने एविडेंस है उस पे केस बनता है, सख्ती दिखाओ, उस पे केस नहीं बनता है, खत्म करो। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है वो लगाओ। ये नहीं कि दिल से अपने सोचो कि भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, वो जुडिशरी का काम नहीं है। तो बेल का, और ये पहली बार मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और मैं अकेला नहीं हूं जो क्रिटिसाइज कर रहा। ये बेल नॉट जेल से हम जेल नॉट बेल पे कब ट्रांजिशन हुआ है? मुझे याद है भारद्वाज साहब ने एक बार ये क्रिटिसिज्म किया था, और लॉ मिनिस्टर थे। मेरी उनसे यही बहस हुई थी कि मैंने कहा आप लॉ मिनिस्टर हो, आप जजेस को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, कानून बदलो। तो ये जो माइंडसेट है, और यही मैं इस एंड में ये कहूंगा कि जब कोविड हो रहा था और गरीब लोगों को ज्यादा कोविड हो रहा था, तो सॉल्यूशन क्या था कि गरीब लोगों को वैक्सीनेशन दो या अमीर लोगों को कोविड पे एक्सपोज करके इंजेक्शन दो कोविड का, कि सबको? ये तो नहीं होता ना। Before I let you go, Mr. Harish Salve, I want to ask you, आजकल आप खुद सुर्खियों में भी रहते हैं, पैंडोरा पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपका भी नाम आया है, तो आजकल लोग आपसे पूछेंगे कि आप अमीरों की इसलिए इतनी हिमायत कर रहे हैं क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं और आप सबको बचाना चाहते हैं। देखिए, मैं मेहनत करता हूं। मैंने 2013 में मैं लंदन शिफ्ट हुआ, पहले एक फ्लैट खरीदा, वो टैक्स को डिस्क्लोज किया, फिर दूसरा फ्लैट खरीदा, वो इनकम टैक्स को डिस्क्लोज किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ये फ्लैट खरीदा। वो इंटरेस्टिंग ये हो गया कि मैंने कतार इस्लामिक बैंक से लोन लिया, तो वो ब्याज नहीं लेते, इस्लामिक बैंक है, वो नफ़ा नुकसान का बिल पकड़ा देते हैं कि आपकी तरफ से हमने ये काम किया, आप यू ओ अस सो मच मनी। तो उससे टैक्स डिपार्टमेंट क्यूरियस हो गया कि सालो साहब ने कोई ट्रेडिंग शुरू कर दी लंदन में, तो उसका टर्नओवर क्या है, तो सब समझ आया। तो पूरा उन्होंने एग्जामिन किया, मामला बंद हो गया। और बीबीआई कंपनी में क्यों लिया? अरे भाई, बीबीआई कंपनी ने जो ओनर था उसने बनाया। अब आज मैं उसको बीबीआई कंपनी से निकालूंगा तो मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो मैं क्यों निकालूं? तो पड़ा हुआ है बीबीआई कंपनी में, पड़ा है। दूसरा फ्लैट जो नहीं था कंपनी में, वो मेरे नाम में। तो लंदन में रहता हूँ, नाविका, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो लंदन में अगर मेरे पास घर है और वो घर 5 मिलियन पाउंड यानी 40-50 करोड़ का है, तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? इंडिया में मेरे बराबरी के वकील 50 करोड़ से तो ज़्यादा ही महंगे घर में रहते हैं। तो हम लोग हैं अपर मिडिल क्लास, और यहाँ एक फ्लैट ओन करना, मेफेयर में 2 फ्लैट ओन करना मिडिल क्लास है, अमीर नहीं है। तो हाँ, हम लोग हैं, मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास है। मेरे सुनने में ये आया है, आईसीजे वाले नाम बताते हैं किन इंडियंस का नाम आपको प्रिंट करना है, और वो आप प्रिंट करोगे। और आप मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरी बात छोड़ दो आप, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरा एक दिन नाम आया नहीं आया, मेरा कोई क्लाइंट नहीं भागने वाला ये पढ़ के कि पैंडोरा पेपर्स में मेरा नाम छपा। और इनकम टैक्स को तो मैंने सीधी सीबीडीटी चेयरमैन को चिट्ठी लिख दी, मैंने कहा साहब आप बन रहे हो, टाइम मत वेस्ट करना, ये सब कागज हैं, आप देख लेना। पर एक और चीज आप ये समझ लो, 2 नाम मैं बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर का क्यों नाम उछाला, क्या निकला उसमें? जब वो आपको कह रहा है भैया लर्म्स का पैसा है, मैंने दिया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ छाप हो गया। मैंने उस दिन किरण मजमूदार से बात की, उसके हस्बैंड का नाम छाप दिया, वो फॉरेनर है, उसने एक ट्रस्ट बनाया अब्रॉड, किरण का कहीं नाम नहीं है। किरण ने मुझे ये बताया कि जब उसने बोला मेरा नाम क्यों दे रहे हो, वो कहता है कि मॉरली तो आप ज्वाइंट है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो किरण इज इंडिया सेल्फ मेड टॉप फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर हु गेन्स बाय डिफेमिंग हर। सोचिए आप, अनिल अंबानी का जो छापा उन्होंने, बैंकरप्ट टेल्स इंडिया यूके कोर्ट दैट ही डजंट हैव मनी, लुक एट दीज कंपनीज। 2016 में अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे सब एसेट्स की वैल्यू चली गई है क्योंकि मेरी 2 कंपनीज क्राइसिस में है, टेलीकॉम ने ले डुबाया।
2007 में उसने लोन लेके कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो आप ये आर्टिकल में लिखो कि 2000, आप तो अभी ये कह रहे हो आपके पास इतने 100 मिलियन है या 500 मिलियन है। किसने लिया था? कंपनी लिया था। पैसा कहाँ गया? वो कंपनी में शेयर्स लिया, और वो सब डिस्क्लोज, यानी सब प्रिंटेड बैलेंस शीट में है, आरबीआई परमिशन है, सब है। किसकी मदद कर रहे हो आप? चाइनीज की मदद कर रहे हो कि कल वो एप्लीकेशन डालें यूके कोर्ट में कि इन्होंने झूठ बोला था। तो ये एक क्या चल रहा है? और आप लोगों को, आपको फॉरेन So you're इन्वेस्टमेंट saying this is an international conspiracy? मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जिनके पास साधन है इंक्वायर करने के, उनको करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप किसी फॉरेनर से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि किससे इंटरव्यू किया जाए, किससे नहीं किया जाए, किसके बारे में क्या कहा जाए? विल योर कॉन्शियंस परमिट दैट? Important debate raised by Mr. Harish Salve, and it has far-reaching repercussions and impact on Indian businesses and Indians as a whole. Well, as always, Mr. Salve, pleasure speaking to you. हमेशा लगता है कि frankly speaking 1 घंटे का शो है, लेकिन आपके साथ बात करने में समय कहीं कम पड़ गया. There's so much to speak to you about and so much to know from such a sharp legal mind. Thank you. Always a pleasure, Navika. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Hope to see you soon in a courtroom arguing the best of cases. Thank you.